this problem. तो उसका किसी को सोल्यूशन मिला? 1 8 1 5 1 3 1 2 and 4 6 7. Okay. Okay, let me solve this. First of all, what's the date? 5 October. Okay. So this you have to write as a product of transposition. So it's very simple. You can write it as you can write 235 as 2325, okay, and 3581 as this is a scale of length 3. So we are getting two transpositions here, and यहाँ देखते हैं क्या होता है यहाँ पर. This will be 3 5 3 8 3 1. ठीक है. तो अभी हमको क्या करना है? We have to write 235 into 3581 as a product of transpositions. So we just write 235 as this and 3581 as a product of these three. So it will be 25 23 31 38 and 35. So अभी जो आंसर बताया, किसने बताया था आंसर? Riya. Riya, you got this answer, same answer? Ma'am, I got 1 8 1 5 1 3 1 2 and 4 6 7. 4 6 7. एक बार आप ट्राई करो अपना, एक बार फिर से हम चेक करते हैं. Okay, ma'am. हाँ, यहाँ से बताओ, स्टार्ट करो. Ma'am, I wrote 2 3 5 as like I multiplied them and then I did the transpositions. So you tell me the final answer. Ma'am, 1 8 There are many ways of writing a permutation as a product of transpositions. This is not the unique way as I have written. This is not the unique one. Because you might notice that when we have written this as a product of transpositions, these are not disjoint, because these are not disjoint. 2 3 5 and 3 5 8 1, these are also not disjoint permutations, because 3 is appearing in this one and 3 also appearing in this one. 5 and 3 and 5 are both appearing in the two permutations. Two permutations are said to be disjoint when there is no symbol in common in them. Okay, so these are not disjoint permutations, and the answer we have written in terms of transpositions, that is 2 cycles. These are also not disjoint. So if 3 3 3 3, okay. So if you want to write as a product of disjoint transpositions, then you have to multiply them, write it as a permutation in 2-row form, then you can make cycles. So then you will be able to get as a product of transpositions which are disjoint. But in the question we were not asked to write as a product of disjoint transpositions.
It was just written that write as a product of transposition. So this is also good. Okay. So what is the answer? What is your answer, Ria? Ma'am, 1 8. 1 minute. 1 minute. 1 8. 1 5. 1 5. 1 3. 1 3. 1 2. 1 2. And 4 6 7. 4 6 7. 7. The Yes. cycle of length 3. No, ma'am, like separately 4 6 7. 7. So we can eliminate 7. We can remove 7 because it's understood. Ma'am, 4 and 6 7 are is fixed. also separated. 4 and 6 are also Okay. separated. So they are fixed now, so we can remove them. Yes, ma'am. So there are how many transpositions? 4 transpositions. और जो हमारा आंसर था, we got 1 2 3 4 5 transpositions. So something is missing, Ria, in your answer. Something is wrong. Because as I said, there is not a unique way to write a permutation when we write as a product of transposition. But the number of transpositions occurring remains fixed. The number of transpositions remains even or odd, that remains fixed. Because यहाँ पे क्या आ रहा है, आप देखो यहाँ पे 5 1 2 3 4 5 transpositions. That is odd number of transpositions, and in your answer we are getting even number of transpositions. So अगर ये हो सकता है कि 5 है, 7 आ जाए आंसर, 9 आ जाए, कहीं आपको 9 भी मिल जाए. बट अगर इवन मिलेगा, हाँ इवन मिलेगा तो इवन ही मिलेगा, और ऑड मिलेगा तो ऑड ही मिलेगा. ये आपने लिखा है ना 3 5 8 1. हाँ तो कुछ इसमें रॉन्ग है. अगर आपको whenever you write a permutation as a product of transpositions, you will either get even number of transpositions or you will get odd number of transpositions. Okay, ma'am. The number of transpositions may not be fixed because there are different ways to write, but even or odd, that will remain fixed. अगर even है तो even ही मिलेगा, odd है तो odd ही मिलेगा, है ना. इसमें आपने कुछ गड़बड़ कर दी होगी. Okay, How ma'am, I did will you check. write it? आपने 1 से स्टार्ट किया है ना, तो आप इसको ऐसे, मैं बताती हूँ, अगर 1 से स्टार्ट करना है तो जस्ट अ मिनट. तो अगर हम 1 से करना चाहते हैं अपना ये स्टार्ट, तो फिर आपको ये साइकिल का फॉर्म चेंज करना पड़ेगा. आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 3 5, और इसको आप अगर 1 से स्टार्ट करोगे तो 1 का इमेज 3 है ना, तो 1 3 5 8. ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि क्योंकि साइक्लिक परमुटेशन होता है तो उसमें जो साइकिल जो ऑर्डर है दैट शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड. तो 1 से हम ऐसे लिखेंगे. तो आप इसको 3 से स्टार्ट कर सकते हो, 5 से, जो भी आपकी चॉइस. तो इसको तो आप वही लिखोगे 2 3 2 5, और ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 2 5, एंड ये वाला हो जाएगा 1 3. यहाँ से लिखेंगे 1 3 1 5 1 8. ठीक है, तो ये वाला आप ऐसे भी कर सकते हो. अगर आपको ऐसे लिखना है, डिसजॉइंट में लिखना है, ये अगर आपको सपोज ये क्वेश्चन दिया जाए कि राइट, इसको दूसरे फॉर्म में लिखती हूँ मैं क्वेश्चन को. परम्यूटेशन के क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, ये आते हैं एग्जाम में. क्वेश्चन इज राइट 2 3 5 3 5 8 1. अच्छा, यहाँ पे मैंने ऊपर आपको बताया होगा ना कि ये कहाँ पे है, S7 में है, नहीं कहाँ पर है ये, S8 में है या S9, कहाँ पर है? S8. S8. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को दूसरा एक दूसरा सिमिलर क्वेश्चन बनाते हैं, मिलता जुलता सा. राइट दिस इन S8 एज ए प्रोडक्ट ऑफ
Disjoint permutations. डिसजॉइंट परम्यूटेशंस में लिखना है। डिसजॉइंट ट्रांसपोजिशंस हमेशा हो सकता है आपको ना मिले, पर डिसजॉइंट परम्यूटेशंस के प्रोडक्ट में हमेशा मिलेगा, क्योंकि ये डिसजॉइंट नहीं है ना, 3 5 3 5 अपीयर हो रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट दिस as a permutation in two row form. Okay, so 1 2 3 4 5 6 7 8. अब यहाँ पे you can easily see that 1 goes to 8 and 8 goes to 8. So 1 goes to 8. 2 goes to 2 because 2 is not appearing here. So 2 goes to 2 and 2 goes to 3. 3 goes to 5, 5 goes to 3. 1 goes to 8 or 1 goes to 3? Oh, sorry. My mistake. 1 goes to 3, 3 goes to 5. So 5 आ गया. 2 goes to 2, 2 goes to 3, 2 goes to 3, 3 goes to 5, 5 goes to 3, 3. 4 goes to 4, 4 goes to 4. 5 goes to 8, 8 goes to 8. 6 goes to 6, 6 goes to 6. 7 is not appearing, so it's also fixed. 8 goes to 3 1, goes 1 to goes 2. to 3 goes 3 goes to Ma'am, 2 3 आएगा. goes to to 5. 5 3 goes 3 to goes to 5, 5 goes and 1 goes to 2, ma'am. to 1 goes to 3, 3 goes to 5. Yes. Yes, ma'am. उल्टा नहीं And चलेंगे ना, उल्टा नहीं चलेंगे। yes, ma'am. And आपका 3 जो goes साइकिल to है उसमें आप हाँ, ये जो एलिमेंट है ये प्रीवियस वाले का इमेज है, इस ऑर्डर में चलना, हमेशा उल्ट बैक डायरेक्शन में नहीं जाना है, ठीक है। फॉरवर्ड में जाना है। 2 की इमेज 3 है, 3 की 5, 5 की इमेज 2 है, सीधे घुमा रहे हो। 3 की तो 5 हो गई बस, ठीक है। तो ये आपका आ गया ना। अब इसको परम्यूटेशंस में लिखेंगे ना, ma'am, how ये भी 2 and क्वेश्चन 3 आता have है। same image? Ma'am, How 2 to also has 3 and 3 also goes to 3. How is that possible? And 3 image of 3 will be 2. that is, एक मिनट, 3 की इमेज 5 है और 5 की इमेज 2 है। सो आज मिस्टेक हो जा रही है बार बार। करेक्ट। एक बार फिर से लिखते हैं। वन का इमेज देखते हैं पहले। 1 गोज टू 3, 3 गोज टू 5, ठीक है, चेक करते रहना। 2 goes to 2, 2 is fixed, 2 goes to 3, 3 goes to 5, 5 goes to 2. Now it's correct, है ना। 4 goes to 4, 4 goes to 4. 5 goes to 8, 8 goes to 8. 6 goes to 6, 6 goes to 6. 7 फिक्स्ड है और 8 का इमेज 1 है और 1 का 1। अब ठीक है। Yes, ma'am. तो बस अब इसको ड्राइंग साइकिल्स में लिख देंगे। से भी स्टार्ट कर सकते हो आप किसी भी नंबर से। लेट्स स्टार्ट विद 1। तो सपोज हमने यहाँ लिखा, तो 1 की इमेज 5 हो गई और 5 की इमेज 8 हो गई, ठीक है। और 8 की फिर से 1, तो ये तो यहाँ क्लोज हो गया। अब दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट होगा। लेट्स स्टार्ट विद 2। तो 2 goes to 3 and 3 goes to 2. So this is also closed. This is closed. 1 2 3 4 5 नंबर हो गए ना, 3 बचे, तीनों फिक्स्ड होंगे शायद। 6 7 4 ये फिक्स्ड। हाँ, तो बस ये हो गया एज ए प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट परम्यूटेशंस। This is the answer. Okay. ठीक है। Yes, ma'am. ठीक है। सपोज आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि
कौन सा ये क्वेश्चन था? 2 3 8 1 हाँ. Whether 25 3581 even permutation or odd permutation, and how. Um, do you know the definition of even and odd permutations? Have I told you? Ma'am, your voice is breaking. A permutation is said to be even permutation if you write that permutation as a product of transpositions and the number of transpositions occurring is even number. Then we say that the permutation is even, and when the transpositions occurring is there are odd number transpositions occurring, then we say that the permutation is odd one. Is my voice clear? Uh, yes, ma'am. तो आप ये बता सकते हो, अभी हमने ये 2353581 ऊपर सॉल्व किया है, 2353581. हाँ, तो इसमें जो हमारे जो ट्रांसपोजिशंस अपीयर हो रही थी वो कितनी थी? 5. 5 है ना. ऊपर भी जब मैंने ये सॉल्व किया था तो भी 5 ही थी, तो 5 आ रहे हैं ना. देयर आर 5 नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस. दिस इज 2353581 is an odd permutation. 235. When we write, you can write the transposition also over here, but I'm not repeating that, है ना. बार बार ऊपर जाना पड़ेगा, तो आप अपने नोटबुक में अच्छे से लिखना इसका आंसर. When we write 2353581 as a product of transpositions the number of transpositions is, transpositions you understand now, मतलब लेंथ, 2 लेंथ का साइकिल. The number of transpositions is odd, so it's an odd permutation. You can write. ये एक odd permutation होगा, ठीक है. It's an odd permutation. So you might be asked in exam that find out whether it's an even permutation or it's an odd permutation. ठीक है, तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो उसको एज प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल्स लिख के, है ना, और बता सकते हो कि ऑड है या इवन है. अच्छा, लेट मी आस्क ए क्वेश्चन. Product of an even permutation and an odd permutation will be even or odd. Odd. Suppose you have an even permutation and an odd permutation, so their product will be a permutation obviously, so it is even, it will be even or odd permutation. It will be odd.
बिकॉज ऑड क्यों होगा प्रिया? मैम अंतिमा सेड। अंतिमा, अंतिमा ऑड क्यों होगा? Ma'am, number of permutations in matlab we have to some number of cycles, then it will be sum of even and odd will be odd. बिल्कुल करेक्ट, राइटली सेड। बिकॉज जब आप इवन परम्यूटेशन को लिखोगे एज प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस, तो देयर विल बी इवन नंबर of transpositions or odd में odd number of transpositions. So when you will write as a product, तो even number और plus odd number तो odd ही होगा ना, ठीक है? तो product जो होगा even और odd permutation का that will be odd, ठीक है? और अगर even even है, even permutation multiplied with even permutation, तो वो क्या होगा? Even. इवन हो जाएगा, इवन नंबर है, इवन नंबर को इवन नंबर में ऐड करेंगे तो इवन ही आएगा। और ऑड का प्रोडक्ट क्या होगा? Even. Even, even. इवन हो जाएगा, ठीक है? तो इवन परम्यूटेशन है, नहीं नहीं ऑड परम्यूटेशन है इनटू ऑड परम्यूटेशन, दैट विल बी इवन परम्यूटेशन। तो ऑड हमें तभी मिलता है, सिर्फ एक केस में मिलता है, जब हम इवन परम्यूटेशन और ऑड परम्यूटेशन का प्रोडक्ट करते हैं तब हमें ऑड मिलता है, अदरवाइज दोनों केसेस में हम इवन इवन मिलता है, ठीक है? Yes, ma'am. ओके, साइक्लिक परम्यूटेशन तो आपको समझ आ गया ना? प्रॉपर डेफिनेशन में आपको बता दूंगी क्या होती है लिख के, बुक में भी लिखी हुई है। हाँ, साइकिल के ऑर्डर में जब होता है परम्यूटेशन, है ना, वो साइक्लिक परम्यूटेशन होता है। जैसे ये 2 3 5 ये साइक्लिक परम्यूटेशन है ना। दोबारा कर दोगे? क्या दोबारा बताना है? मैम जो आप गोष्ठी वाला वो टेबल टाइप बना रहे थे मैम, वो वाला एक बार एक्सप्लेन कर दो कि कैसे क्या बना आया। ये? Ma'am, she is Sorry? talking about two array form of previous question. 2 array form, this one? यस मैम। I think I have written मतलब you want to learn how to write a product as a two row form, in two row form, मैम exactly जो टू ये। एरे बताया है, जैसे 1 का आपने 5 लिखा एंड 8 का 1 कैसे लिखा? मुझे 8 का 1 नहीं समझ आया, बाकी तो एक बार एक का बोलिए। वन, तो एक जैसे का आपने वन, 8 goes to 1, 8 goes to 1 and 1 goes to 1. In this permutation 1 is fixed, 1 is not appearing, so 1 goes to 1. So 8 goes to 1 and 1 goes to 1, so 8 goes to 1 हो गया ना फाइनल, ठीक है। ठीक है? यस मैम। हम्म, अच्छा चलो, मुझे आप मैं ऐसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, इसको हटा देते हैं, बार बार यही क्यों लिखें, कुछ और लेना चाहिए। इन S7 ले लेते हैं, इन S7 2 5 4 7, ठीक है? इज इवन परम्यूटेशन और ऑड परम्यूटेशन, बताओ। Ma'am, odd. इवन होगा या ऑड होगा?
odd. ऑड होगा. ऑड होगा बिकॉज इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 5 2 4 2 7. ठीक है. So 3 transpositions are appearing. So it is odd. So it's very understood that if we have a cycle of even length, then it will be odd permutation. और अगर odd length का होगा, suppose आपके पास है 2 5 4 7 1, तो आप इसको लिखोगे 2 5 2 4 2 7 2 1. ठीक है. If we have a cycle of odd length, then obviously it will be the product of transpositions of even number of transpositions. So it will be even. ठीक है. तो कोई भी साइकिल को देख के आप बता सकते हो कि even है या odd है. ठीक है ना. इवन लेंथ का जो साइकिल होगा वो ऑड परम्यूटेशन होगा. जैसे यहाँ पे ऑड है ना, 2 5 4 7 जो है ये हमारा इवन लेंथ का है और ये ऑड है. ठीक है. तो यहाँ पे इसको ऐसे नोट हम लिख सकते हैं. A cycle of even length is odd permutation and a cycle of odd length is even. सपोज अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं तो आप फटाफट आंसर कर दोगे. S9 ले लेते हैं. तो 2 5 3 3 7 4 8 1 2 and 1 2. ठीक है. Tell me whether it's even permutation or odd. odd. ऑड है. देखो ये हमारा ऑड लेंथ का है तो ये इवन हो गया. ठीक है. ये वाला इवन लेंथ का है Odd. तो ये ऑड परम्यूटेशन है. एक्चुअली ये तो एक ट्रांसपोजिशन है, 1 नंबर तो ऑड ही होगा. ये इवन लेंथ का है तो ये ऑड हो गया और ये ऑड हो गया. Odd. तो बता दो अब इनका जो सम होगा वो क्या होगा. ऑड ऑड या यहाँ से देख लो ना, ऑड ऑड जो है वो इवन हो जाएगा odd. है ना, और ऑड इवन जो होगा वो ऑड हो जाएगा और ऑड इवन फिर से ऑड हो जाएगा. ठीक है. तो ऑड इसका आंसर होगा ऑड. ठीक है. और वैसे अगर आपको इस तरह से लिखने में वैसे ठीक नहीं है. आप एग्जाम में अगर आ रहा है क्वेश्चन, अगर देखो अगर सिर्फ जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वहां पे पूछा जा रहा है तो वहां तो फास्ट फास्ट लिख दो ना. जैसे अगर सिर्फ इन दोनों का प्रोडक्ट दिया होता, अगर सपोज ये नहीं है 1 2, तो उस केस में क्या होता. उस केस में ये हो जाता कि ये इवन है ऑड है तो ऑड और इवन, तब इवन आ जाता आंसर. तो लेकिन एग्जाम में अगर आपको पूछा जा रहा है तो आप ना पूरा लिख के दिखाओ कि 2 5 3 को लिखो 2 5 2 3 बैक से स्टार्ट करके और फिर उसके बाद काउंट करो नंबर. तो इसमें 2 आएंगी ट्रांसपोजिशंस, यहाँ पे 3 आएंगी, 2 और 3 5 और एक ये 6 और एक ये 7, तो ऑड हो गया. ठीक है. तो आई होप इट्स क्लियर. अब सबको ये परम्यूटेशंस का ये सब समझ आ गया होगा है ना. अभी तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं जहां तक मुझे लगता है. कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो. Anybody has any doubt?
Please ask if you want to discuss anything about permutations. So let's move further. चलो ठीक है. अच्छा ये बताओ, सपोज यू आर गिवन, ऐसे मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप लोग मुझे आंसर करना. सपोज यू हैव एन इवन परम्यूटेशन, तो आपको एग्जाम्पल ले लो एग्जैक्टली कुछ, तो आपको इजी होगा. सपोज आपने लिया S3 ले लिया, तो S3 में आपको पता है ना, इवन और रहने देते हैं, अभी कुछ और पूछती हूँ आपसे. S3 यू नो व्हाट इज S3? इसमें जो परम्यूटेशंस होते हैं वो आपको पता है कौन कौन से होते हैं? Yes, ma'am. 1 2 3. एक तो वो होता है जिसमें सारे एलिमेंट्स फिक्स होते हैं, Yes, ऑल द एलिमेंट्स आर फिक्स, तो उसको 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हो. उसको आप ये भी लिख सकते हो 1 2 3, बट इतना लंबा हम नहीं लिखते, सिर्फ हम ये लिख देते हैं. ठीक है. और कौन कौन से थे? in which only one is fixed. हाँ, in which only one is fixed. 2 goes to 3 and 3 goes to 2. एक ये था, और Then एक था जिसमें only ये 2 is fixed. only 3 is fixed, तो 1 2 हो गया. और एक साइकिल बन रहा था 1 2 3, और एक साइकिल बन रहा था 1 2. आई होप यही थे ना? 6 हो गए. हाँ, ये हो गए. अब आप इसमें ये हमने किया था, यही प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस आप यहाँ पे बोल ले सकते हो, ऑपरेशन, प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशंस. ठीक है, इसको आप ऑपरेशन ले लो, और ये आपका सेट है. तो आप इसको चेक करो कि ग्रुप बनेगा या नहीं. ये शायद हमने नहीं किया ना? No, ma'am. हाँ, तो इसको आप चेक करो कि ये ग्रुप बनता है या नहीं बनता. अभी चेक करो. अब तो आप ग्रुप चेक करना सीख गए हो. चेक वेदर S3 इज ए ग्रुप. तो पहले तो क्लोजर आप देखोगे अंडर प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस. ठीक है, देखो आइडेंटिटी देखो, क्लोजर तो हो जाएगा. आप कोई भी दो ये मल्टीप्लाई करोगे, इन्हीं में से कुछ आएगा. आप चेक करके देख सकते हो कुछ एग्जांपल्स के लिए. सारा आप बाद में कर लेना, है ना, जगह छोड़ दो, बाद में कर लेना. क्लोजर हो जाएगा. एसोसिएटिविटी होती है फंक्शंस का, जो प्रोडक्ट होता है फंक्शंस का कंपोजिशन, वो एसोसिएटिव होता ही है. आइडेंटिटी और इनवर्स चेक करो इसमें. And both are present. हम्म, Identity is Yes, ma'am. 1. आइडेंटिटी क्या होगी इसमें? 1. 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 को आप किसी के साथ भी करोगे तो कंपोज करोगे तो वही 1 को इसके साथ करोगे तो यही आएगा. तो 1 तो आइडेंटिटी हो गई. अब इनवर्स भी बता दो, 2 3 का इनवर्स क्या होगा? मतलब 2 3 का इनवर्स वो परम्यूटेशन होगा 2 3 इंटू सिग्मा, ये 1 आना चाहिए, ऐसा परम्यूटेशन चाहिए हमें. सिग्मा मतलब सिग्मा, वी वांट इज सिग्मा सच दैट व्हेन इट इज प्रोडक्ट multiplied with 2 3 it gives some identity. Ma'am, it will be 2 3. करेक्ट. करेक्ट. 2 3 का 2 3 हो जाएगा. 1 3 का इनवर्स 1 3, 1 2 का 1 2, 1 2 3 का इनवर्स क्या होगा?
132. 132. Yes, 1 ma'am. goes to 2, 2 goes to 1 goes to 3, 3 goes to 1, 1 goes to 1 हो जाएगा, 2 goes to 1, 1 goes to 2, 2 goes to 2 and 3 goes to 2, 2 goes to 3. हाँ ठीक है, 1 2 3 का 132 और 132 का 1 2 3 हो जाएगा, तो ये ग्रुप फॉर्म Yes, करेगा, है ना, ग्रुप फॉर्म करेगा. अच्छा, Ma'am, kindly explain. Ma'am, kindly explain this question once again. you have to show that the set S3 which contains these 6 permutations is a group under product of permutations. Operation is product of permutations, product of composition, you can also say. So, first property of Ma'am, a group is closure property. ma'am, what you said, can you please repeat? Say that again. Ma'am, repeat the question, please. Question. Okay, I am writing the question. ये लिखा तो है. Check whether S3 is a group under product of transposition. This is the question. S3 is a set having 6 permutations, and you have to check whether this set forms a group under product of permutations लिखना चाहिए in case of transpositions. Question is clear or not? This is the question. तो आपको इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करनी है. क्लोजर आप अपने आप कर सकते हो. आप क्लोजर देखोगे ना जब इसका टेबल बनाओगे तो वो हो जाएगा. इसी के सेट के ही एलिमेंट्स मिलेंगे जब आप कंपोजिशन करोगे. वो भी 2 परम्यूटेशंस का. करके दिखा दो क्लोजर वाला. Who is speaking? अंतिमा. अंतिमा. अच्छा चलो दिखा Ma'am, देती हूँ. before we have done like prove that S3 is a group under product of permutation. Now we are checking it whether S3 is a group under product of permutation. अब क्या पूछना चाहते हो एक बार फिर से बोलो. मैम पहले हमने क्वेश्चन किया था ना, प्रूव दैट S3 is a group under product of permutation. हाँ. अभी हम चेक कर रहे हैं लाइक बस. मतलब देखो ये आपने पहले किसी क्लास में तो नहीं पढ़ाया था. मैंने पहले भी किसी क्लास में करा दिया था क्या ये वाला क्वेश्चन, या आज ही करा रही हूँ? पहले ये बताओ. पहले किया था या नहीं, या आज आज ही कर रहे हैं ना, तो ठीक है. क्वेश्चन को मैं 2 तरह से फ्रेम कर सकती हूँ. एक क्वेश्चन में आपसे कह सकते हैं कि आप चेक कीजिए कि ग्रुप है या नहीं, है ना. तो चेक करने में थोड़ा सा आपको पता नहीं रहेगा ना कि है या नहीं, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है. कई बार जब क्वेश्चन को इजी बनाना होता है तो हम क्या देते हैं, प्रूव दैट, तो हम लिख देते हैं. चेक में तो ये होता है ना कि होगा. अभी तो खैर ये बनेगा ग्रुप, तो क्वेश्चन को हम कुछ भी लिख सकते हैं. क्वेश्चन तो हम कैसे भी फ्रेम कर सकते हैं. चेक वेदर S3 इज ए ग्रुप और नॉट अंडर प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशंस, या फिर प्रूव दैट. तो अभी मैं क्वेश्चन को प्रूव दैट लिख देती हूँ. ठीक है, तो आपको प्रूफ करके दिखानी पड़ेंगी सारी प्रॉपर्टीज. क्वेश्चन तो दूसरा चाहे लिख दो चाहे प्रूफ लिख दो, क्वेश्चन तो चेंज कर सकते हैं बट आंसर तो सेम ही रहेगा ना. प्रूव दैट S3 is a group. एक बार फिर से करते हैं इसे प्रॉपर. Prove that S3 is a group under product of, आज मैंने रफ लिख दिया ना, प्रॉपर फेयर नोट्स नहीं बनाया आज. ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट S3 is a group under product of permutations. तो इसका सोल्यूशन देखो आप. तो पहले तो S3 के एलिमेंट्स लेते हैं. S3 के एलिमेंट्स ये हैं 1
इसको आप 1 के प्लेस पे 2 या 3 भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और क्योंकि सब फिक्स ही है, 1 goes to 1, 2 goes to 2, 3 goes to 3, तो 1 हो गया। और एक ये हमारा जिसमें 1 फिक्स था वो 2 3 है, जिसमें हमारा 2 फिक्स था वो 1 3 है, और 3 फिक्स है तो 1 2 है, और 1 2 3 1 3 2, ठीक है। ये बन गया हमारा S3, ये सेट है। अभी अभी हम इसको ग्रुप नहीं बोलेंगे क्योंकि हमने प्रूफ नहीं किया। जब तक प्रूफ नहीं करते तब तक कैसे कहेंगे कि ये ग्रुप है। अभी हमारा सेट है, तो इसमें जो पहली प्रॉपर्टी है वो हमारी होती है क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करनी होती है। तो क्लोजर में तो आप वही टेबल बनाते हो ना, कॉम्पोजिशन टेबल। अब यहाँ पे हमारे ये 6 एलिमेंट्स हैं, तो जो टेबल बनेगी, हालांकि ये क्वेश्चन बहुत लेंदी नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत लेंदी है, इजी ही है। आप देखो यहाँ बना लो एक टेबल। यहाँ पे 1 लिखा हमने, यहाँ लिखा हमने 2 3, यहाँ पे हम सेकेंड एलिमेंट ले रहे हैं 1 3, और नेक्स्ट एलिमेंट हम ले रहे हैं 1 2, फिर हम ले रहे हैं 1 2 3 और 1 3 2, और यहाँ पर आप ले रहे हो यही एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो आपको इसको प्रोडक्ट करना होगा। अब ये आइडेंटिटी है, इसको आप किसी के साथ, ये 1 है ना, मतलब ये तो फिक्स ही कर रहा है, 1 goes to 1, 2 goes to 2, 3 goes to 3। आप इसको किसी के साथ भी प्रोडक्ट करके देखना, वही आएगा। आप करके भी देख सकते हो, तो इसलिए हम ये डायरेक्ट मैं यहाँ लिख देती हूँ एलिमेंट्स को। ठीक है, उसके बाद 2 3 का 1 के साथ 2 3 ही होगा, फिर 2 3 का 2 3 के साथ प्रोडक्ट कर सकते हो। तो क्या होगा, 2 3 का 2 3 के साथ करो, तो अगर आप ऐसे देख सकते हो तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज आप लिख के कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम 1 की इमेज देखें तो 1 तो हमारा दोनों में ही फिक्स है ना। अगर हम यहाँ पे 2 की इमेज देखें तो 2 goes to 3 एंड 3 goes to 2, तो 2 goes to 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 goes to 3, 3 goes to 2, तो 2 की इमेज हमारी 2 हो गई, और 3 की 3 goes to 2, 2 goes to 3, 3 की 3 हो गई, तो फिक्स हो गया ना, 1 2 3 तीनों फिक्स हो गए, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसी तरह आप इसका 2 3 का और 1 3 का अगर हम प्रोडक्ट करें तो क्या आएगा। 1 की इमेज पहले देखते हैं, 1 की इमेज पहले देख लेते हैं। 1 goes to 3 एंड देखो आप इसको ना थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि जब कॉलम और रो एलिमेंट। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, आप फिर से बोलिए। मैम फॉर एग्जांपल इन वी आर चेकिंग फॉर सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम 2 3 एंड 1 3, सपोज ये हम चेक कर रहे हैं। हाँ, तो मैम आई एम आस्किंग अबाउट कि वेदर वी हैव टू राइट फर्स्ट कॉलम एलिमेंट और फर्स्ट रो एलिमेंट इन प्रोडक्ट फॉर्म। एज यू विश, जैसे आप एक कन्वेंशन बना लो कि आपको ऐसे लिखना है, तो फिर आप उसको चेंज मत करो। बट बुक्स में कई बार अलग अलग लिखा होता है, किसी बुक में दूसरा, किसी बुक में, बट बेटर है आप एबिलियन नहीं है ये, मतलब मैम नॉट नेसेसरी ना, एबिलियन नहीं होता है, नो नॉट नेसेसरी। आप कन्वेंशन बना लो। देखो अगर आप इसको ऐसे लिखोगे 2 3 और 1 3 का आप यहाँ पे कर रहे हो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो या तो आप इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। और अगर आप इसको ऐसे लिखोगे 1 3 2 3, तो बस होगा क्या कि रोज और कॉलम्स इंटरचेंज हो जाएंगे। आप एक कन्वेंशन बना लो कि मुझे ऐसे लिखना है। आप वहां बेटर होता है कि आप ना वहां पे मेंशन कर दो, जैसे आप क्वेश्चन करोगे ना तो एग्जामिनर को तो पता नहीं आप कैसे लिख, तो आप यहाँ नोट करके डाल दो, कि एक नोट करके ऐसे डाल सकते हो कि सेकेंड रो थर्ड कॉलम element, I am writing this as like this
है ना, ऐसे करके अपनी लैंग्वेज में लिख दो तो वो बेटर होता है। गलत वो भी नहीं है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 3 को इधर और इसको इधर, वो भी गलत नहीं है। वो देखने का तरीका आप किस तरीके से देख रहे हो, बस ये फर्क होगा कि कॉलम्स और रोज इंटरचेंज हो जाएंगे अगर आप दूसरे तरीके से लिखोगे, पर आपको हर एक में फिर ऐसे ही लिखना है ना, तो वो आप लिख लो और बेटर है कि नोट डाल दो ताकि एग्जामिनर को कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अभी जैसे हम इसका प्रोडक्ट करेंगे 2 3 1 3 को मैं ऐसे लिख रही हूँ, तो यहाँ से करेंगे पहले फिर इधर आएंगे ना, तो क्या आएगा, 1 की इमेज अगर हम देखें तो 1 goes to 3 3 goes to 2 आएगा, तो ये 1 की 2 आ गई, और 2 goes to 2 2 goes to 3 आ गया, तो ये आ गया। अब देख लो 3 goes to 1 है, 1 goes to 1, तो ठीक है मैं 1 2 3 आ जाएगा। इसी तरह से आप सारी एंट्रीज निकालोगे ना, तो ये पूरा जो टेबल फिल करोगे तो ये यही इन्हीं में से कोई आएगा एलिमेंट, कोई भी आउटसाइडर एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक है, तो क्लोजर सेटिस्फाई हो जाएगी। एसोसिएटिविटी फंक्शंस में होती है, आइडेंटिटी ऑलरेडी है यहाँ पर 1, और इनवर्स भी आपका देखो 2 3 का 2 3 के साथ कर रहे हैं 1 आ रहा है ना। इनवर्स भी आप टेबल देख के, आप टेबल नहीं बनाओगे क्योंकि बहुत लंबी होती है, तो आप इनवर्स अलग से दिखा दो, जैसे 1 2 का जो ट्रांसपोजिशन होती है उसकी वो खुद ही इनवर्स हो जाता है, 1 2 का जो इनवर्स होगा वो 1 2 ही होगा, 2 3 का 2 3 होगा, 1 2 3 जो है इसका इनवर्स 1 3 2 आ रहा है, और 1 3 2 का इनवर्स 1 2 3। ठीक है, तो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। हाँ, ये अबिलियन नहीं होगा, तो ये हमारा ग्रुप बन जाएगा S3। ठीक है, नाउ इट्स क्लियर। अभी कोई डाउट है? नो मैम। Dear ma'am. कंटिन्यू करें आगे। हाँ, आगे कंटिन्यू करूँ मैं? Yes ma'am. ठीक है। अच्छा देखो, परम्यूटेशंस में हमने लिखने वाले क्वेश्चन तो काफी कर लिए हैं ना, इसमें कुछ थ्योरम्स हैं। वो कराती हूँ आपको, थ्योरम्स पे ऐसे नहीं, एग्जांपल करके बताऊंगी। 1 मिनट। अच्छा, मैं एक आपको नोट बताती हूँ, एक पॉइंट लिखते हैं पहले, इम्पोर्टेंट पॉइंट। उसका काम मैंने बहुत गंदी हैंडराइटिंग में लिखा है ना। कई बार हाथ ऐसे ही चलता है, कई बार बहुत साफ साफ चलता है। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन लिखो या प्रोडक्ट लिखो, एक ही बात है। कंपोजिशन एक ही बात है। Multiplication of permutations is not commutative in general. This is the note. You can write in your notebook. Multiplication of permutations, terms भी बोल सकते शॉर्ट में, terms is not commutative in general. ठीक है, अब इसको चाहे आप क्वेश्चन के फॉर्म में लिख दो, शो दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ परम्यूटेशन is not commutative in general, or give a counter example to show that multiplication of permutation is not commutative in general,
ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करने के तो बहुत सारे वेज होते हैं, सोल्यूशन पता होना चाहिए बस। तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, दो कोई भी परम्यूटेशन दिखाओ और उनका प्रोडक्ट दिखा दो कि वो एफ जी और जी एफ डिफरेंट आते हैं। जैसे मैं आपको एक देती हूँ, आप मुझे बताना मल्टीप्लाई करके। एक ये है S4 में हम ले रहे हैं, आप कोई भी ले सकते हो, ऐसे एक ले लो, कुछ भी ले लो, 1 2 3 4 और 3 2 1 4, एक ये ले लिया। और जी हम ले लेते हैं 1 2 3 4 4 1 2 3, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये मुझे सॉल्व करके बताओ, ये कितना आता है, और एफओजी और जीओ ये कितना आता है। दोनों सेम आते हैं या डिफरेंट आते हैं? Am I audible? Can you hear me? Yes, ma'am. हाँ बच्चों बोलते क्या करो, मुझे पता नहीं लगता, मुझे लगता है मैं डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गई। हाँ Yes, बताओ ma'am. Audible. ये बताओ इसका आंसर कितना आया? Fog here. 2143. All have got the same answer? All the students have got this answer only? No, ma'am. Ma'am, No. I got 4321. Second Yes, row. ma'am. Yes, ma'am. 4321. हाँ Yes, ma'am. 4321 ही है। Ma'am, it is 4321 है। GOF. हाँ इसमें क्या करना है आपको, यू हैव टू मूव राइट टू लेफ्ट। जैसे आप ये याद रखो ना, जैसे आपको सपोज ये है x, तो आप इसमें ऐसे करते हो ना f ऑफ g ऑफ x, तो पहले आप g अप्लाई करते हो देन f अप्लाई करते हो, तो इसलिए पहले आप g के एलिमेंट्स को देखोगे फिर आप f पे मूव करोगे ना। तो ये आएगा 4321, ठीक है। और हाँ ये बताओ ये कितना आया? इसका आंसर आएगा 2143, ठीक है। आप सबका यही आ रहा है ना? Yes, ma'am. हाँ तो देखो ये दोनों डिफरेंट है, एफओजी इज नॉट सेम एज यूएफ, ठीक है। आप बोलने को आप इसको एफओजी बोल दो या इसको हम, मैं जो यूज करती हूँ मैं ऐसे बोलती हूँ, अगर वैसे तो एफओजी बोल देती हूँ, अगर यहाँ से स्टार्ट करना है तो जी कंपोज विद एफ ऐसे बोलूंगी मैं, ठीक है ना। बट एफओजी जीओएफ बोल देते हैं। तो एफओजी और जीओएफ ये दोनों हमारे डिफरेंट है। इसका मतलब क्या है कि जनरल इन जनरली प्रोडक्ट क्या है, Not commutative. हाँ नॉट कम्यूटेटिव है, ठीक है। तो ये ऐसे आप कोई और एग्जाम्पल बना सकते हो, ये जरूरी नहीं कि ये तो आप कुछ भी फ्रेम कर लो, कोई एग्जाम में आ गया तो आप याद होना रखोगे, एग्जाम्पल बना लेना अपने अकॉर्डिंग कुछ भी। अच्छा Ma'am,
Ma'am, in permutation, we can arrange elements in a cyclic order, na? If we arrange one of the answer, then both answers are same. I think 4, 3, 2, 1. Sorry, अंतिमा, you Ma'am, are अंतिमा. no, ma'am, Srishti. सृष्टि, हाँ सृष्टि बोलो. Ma'am, if we arrange elements in cyclic order in both the answers, then they are same, maybe. Okay, let me check. Suppose we write this FOG as cyclic. So FOG is this thing. So first we take 1 and find out the image of 1. So 1 goes to 4, 1 goes to 4, and 4 goes to 1. So it is closed. Actually, देखो आप ये इसको जब लिखोगे एज ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन तो फिर भी मुश्किल होता है. टू रो फॉर्म में तो बहुत इजी है चेक करना कि वो इक्वल है या नहीं. Two permutations are said to be equal if their images, the images of the elements are same. अब देखो ना यहाँ पे 1 का इमेज 4 है और यहाँ पे 1 का इमेज 2 है, तो इक्वल कैसे हो सकते हैं, है ना? अगर हम साइक्लिक वैसे देखें तो भी नहीं होगा. देखो 1 का 4 हो गया, 2 का 3 है और 3 का 2, तो ये तो हो जाएगा ये. और अगर हम GOF इसको देखते हैं तो यहाँ पर 1 का 2 है, 2 का 1 है और 3 का 4 है, 4 का 3 है, तो ये तो डिफरेंट है ना सृष्टि? Yes, ma'am. Okay. Thank you. समझ आया. Yes, ma'am. Okay. Now I understand. ठीक है, ठीक है बेटा. Yes, ma'am. हाँ, यू वांट ए ब्रेक? दूसरी क्लास भी है ना, ब्रेक चाहिए? Yes, ma'am. है ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हो जाते हैं. तो ठीक है, हम लोग 10 मिनट्स बाद मिलते हैं. ठीक है, तो आई एम क्लोजिंग दिस रिकॉर्डिंग और उसके बाद फिर दूसरा रिकॉर्डिंग ओपन करेंगे. ठीक है, तो मुझे रिमाइंड करा देना, उसमें याद रखूंगी और फिर भी. ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं फिर आफ्टर 10 मिनट्स.